So it's so nice to be once again in your presence. But you know, being a professor in a medical college, परमेश्वर की हुजूरी में आना बहुत ही खुशी की बात है और मैं एक प्रोफेसर होने के नाते I like to take tests. मैं थोड़ी परीक्षा लेना पसंद करता हूँ. You know, I was standing here in this place about 7 months back. मैं करीब यही स्टेज में 7 महीने पहले उपस्थित था. Does anybody remember what the Lord spoke to you on that day? क्या कोई याद करता है कि उस दिन परमेश्वर ने आपसे क्या बात किया? Yeah, forgiveness was the topic. Very nice. Who said that? Venkat. Okay, thank you, Venkat. And just because we don't have much time, Pastor has already told me in my ears, you must finish. So, can you remember what were the headings? There were 4 R's. I'm just giving you a clue. क्या आप याद कर सकते हैं कि उस समय में मैंने 4 बातें आपके साथ में शेयर की थी? What was the first R? Children? Oh, children were in the... Okay, I'll just repeat it in order to save time, because the first R was recognize that nobody is perfect. और पहला जो मूल्य बात ये मैंने बताया था कि ये बात को समझिए कि कोई भी जो है पूर्ण नहीं है. The second was relinquish your right to get even. और हमेशा इस बात के लिए तैयार रहिए कि आपके साथ गलत हो सकता है. Relinquish, leave it. I had given this example to you. You're holding your fist, just leave it. जाने दो उसे, छोड़ दो. कुछ चीजों को जो है आपको छोड़ना है. Third was repay evil with good, and that's because of my favorite verse in Romans 12:21. Do not be overcome by evil, but overcome every evil with good. और तीसरा बात ये था कि जो आपसे बुरा होता है उसको जो है अच्छाई के साथ उसका बदला देना. And the fourth was refocus your life. और चौथी बात था कि हमारे जीवन को फिर से रिफोकस करना. God has a plan for your life and my life, so I'm refocusing. I'm out of parallax. I come back into focus. परमेश्वर का आपका और मेरे लिए जो है एक योजना है, इसके लिए हमें अपने आप को रिफोकस करना जरूरी है. So let us go into today's message. और आज के संदेश की तरफ हम जाएंगे. We'll see. Can you put up the verse Luke 5:1-7? लूका का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका पहले से लेके 7वें वाक्य तक. You can read that. One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crouching around him and listening to the word of God. He saw at the water's edge 2 boats left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the nets for a catch." Simon answered, "Master, we have worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets." Amen. Thank you, sister. It's fine. So the theme of God's word today is nevertheless at thy word. और आज के संदेश का जो है शीर्षक ये है कि आपके जो है कहने पे जो है मैं ये काम करता हूँ. And the Lord will guide us through this time. और परमेश्वर हमें इस संदेश के द्वारा हमें सिखाएगा To understand what these words mean in our life. और इस शब्दों का अर्थ क्या है वो परमेश्वर हमें सिखाएंगे. These lines may seem very simple, और ये शब्द जो है बहुत ही साधारण आपको पेश आएंगे, but here is one of the principles that rules the universe. लेकिन यहाँ पर ऐसी कुछ सीखों को हम सीखने वाले हैं जो इस पूरे पृथ्वी को जो है चलाता है. And what is that word? At thy word. और वो शब्द ये है तो भी तेरे कहने से. I would just like to paraphrase it away from the Bible. Because you say so. क्योंकि आपने ऐसा कहा इसलिए. And as we move further, और जैसे हम आगे बढ़ते हैं, we will add the word nevertheless also to it. और उसके सामने जो है nevertheless करके भी वर्ड ऐड करेंगे. You know, Peter said these words as naturally it could be. और शिमोन ने जो है बहुत ही साधारण रीति से जो है इस बात को कही. But great God, लेकिन परमेश्वर
It is at your word that seraphims fly and cherubims bow. और वो परमेश्वर के शब्द में जो है सिराफ जो है वहां पर उड़ते हैं और वहां पर जो है परमेश्वर के दूत उनके सामने झुकते हैं. At thy word, angels do your command. और परमेश्वर के जो है उस शब्द के आज्ञा में जो है And they- परमेश्वर के दूत जो है उनके आज्ञा को पालन करते हैं. And they listen to the voice of your word. और वो परमेश्वर की आवाज को जो है आज्ञाकारी से सुनते हैं. At your word, space and time first came into being, और परमेश्वर के उस शब्द से जो है इस पृथ्वी बनी और समय बना. as well as everything that exists. We know it in the book of Genesis. और हम उत्पत्ति में ये देखते हैं जो भी हम देखते हैं वो सारा सब कुछ परमेश्वर के एक शब्द से बना. At thy word परमेश्वर के उस शब्द में is actually like the cause of causes. और वो एक कुछ कारणों का एक कारण समझा जाता है. For it is the beginning of God's creation. क्योंकि वो परमेश्वर की जो है रचकर्ता की जो है शुरुआत है. Psalms 33:6 says, by the word of the Lord were the heavens made. वचन संहिता 33वां अध्याय इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर के वचन से जो है इस पृथ्वी के सारे चीज चलते हैं. When the earth was dark and formless, your voice, O Lord, was heard saying, let there be light. और जब ये पृथ्वी में पूरा अंधकार छाया गया था तब परमेश्वर के वो शब्द में जो है रोशनी पैदा हुई. So at your word, इसलिए परमेश्वर के उस शब्द में light leaped forth, और जो है रोशनी पैदा होती है. day and night took its place, दिन और रात जो है जलते रहते हैं. the waters in the heavens separated, और जो है पृथ्वी से जो है पानी जो है अलग हो जाता है. dry land appeared and seas were created, और समुद्र जो है रचे गए. green life and vegetables, जो है हरी बड़ी जो है खेत की जो है चीजें हम देखते हैं. sun, moon and stars, जो है सूरज, उसकी पृथ्वी, उसकी जो है चंद्रमा, then all the living creatures, that's the plants, the animal life and man himself. और जो भी चीज जो है जीवित है वो सारा सब कुछ परमेश्वर के वचन से रचा गया है. The words were framed by the word of God. और जो भी शब्द है वो परमेश्वर के द्वारा ही रची गई थी. And I feel that if one acts in conformity with the word of God, और प्रेरितों की पुस्तक में हम जो है परमेश्वर के और कामों को देखते हैं. we are in line with the forces of the universe. हम जो है इस पृथ्वी के जो है एक एक चाल चलन से जो है हम साथ में चलते हैं. Can we see this condition in the common deeds of our everyday life? क्या हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में इस चीजों को देखते हैं? Not only in creation is the word of God supreme, सिर्फ परमेश्वर की जो है रचने के समय में ही परमेश्वर की जो है शब्दों को अधिकार नहीं है, but the majestic power of the word of God is manifested continually in our lives. लेकिन वो परमेश्वर का महान सामर्थ्य जो है हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में भी वो प्रकट होती है. You know, the Psalms are full of such illustrations. और भजन संगीता में ऐसे कई चीजों को जो है हम रचे हुए देखते हैं. His word runs swiftly. और परमेश्वर का वचन जो है बहुत ही जल्द से जो है चलता है. Snow vapor and the stormy winds are fulfilling his words. और जो भी छोटे से छोटे बूंद को हम देखते हैं वो भी जो है परमेश्वर की आवाज को मानते हैं. When lakes and rivers freeze, the Lord sent forth his word and melts them. जो भी समुद्र, जो भी नदियां हम देखते हैं वो भी परमेश्वर की आज्ञा में चलते हैं. So we see nature moves and abides with his word. और हम हमेशा देखते हैं कि जो प्रकृति है वो परमेश्वर की आज्ञा के समान आगे और पीछे चलती है. Even all matters of fact and history are dictated by his words. और जो भी मिस्टीरियस थिंग है, जो भी गूढ़ चीजें हैं वो भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलती है. So in short, Jehovah Lord is at the center of all things. और संक्षिप्त में कहे तो परमेश्वर जो है सबके जो है बीच में है. As Lord of all events, जो भी हमारे आसपास होती है उसकी प्रभुता. kingdoms arise and empires flourish. और दुनिया में जो है राज्य टिकते हैं, राज्य बनते हैं वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार. Races of men become dominant and subject their fellow men. और लोगों के जो है पीढ़ियां जो है लोगों के जो है भिन्न भिन्न धर्म जो है वो परमेश्वर की आज्ञा से आगे पीछे होते हैं. Dynasties die and kingdoms crumble and cities become desert and armies melt away. परमेश्वर की आज्ञा से जो है भिन्न भिन्न परमेश्वर की आज्ञा से बहुत सारे राज्य गल जाते हैं, टूट जाते हैं उसके कलाम से. ओके, सो व्हेन वी सी आवर कीवर्ड्स, और जब हम अपना वर्स देखेंगे,
जब हम ये वचन हम सुनते हैं, Okay? हमें लगता है कि ये शब्द, सॉरी, आई एम गोइंग टू हिंदी मोड. आई फील दैट दिस वर्ड इज नॉट ओनली फॉर पीटर. और जब ये वचन को हम पढ़ते हैं, वो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ पत्रोस के लिए नहीं थे ये शब्द. It is wonderful to think that the fishermen of Galilee, और ये जो है देखना बहुत ही आसान है कि उस समय के जो मछुआरे थे गलीली के, he obeyed Jesus वो परमेश्वर की आज्ञा को पालन किए and he puts his net down और वो अपने जो है जाल को जो है पानी में डालते हैं. in perfect arrangement with the arranger of all ages. और उस समय में जो है जो सभी चीज के रचकर्ता है, उनके आज्ञा के अनुसार वो अपने जाल को डालते हैं. You know, when I read this verse, जब मैं ये वचन को पढ़ता हूँ, I just see, the net that Peter has dropped into the sea. मैं वो जाल को देखता हूँ जो शिमोन जो है पानी में डालता है. And his hands are consciously doing what the constellations are doing unconsciously. और वो चीजों को देखना पसंद करता है जो वो चीजों को नहीं देख सकता, ऐसी चीजों को देखने की वो कोशिश करता है. He could have very well said, "Arey Jesus, वो ऐसे ही कह सकता था कि ये यीशु मसीह, I am a fisherman. मैं एक मछुआरा हूँ, You are a carpenter." आप तो एक जो है लकड़ों के साथ काम करने वाले व्यक्ति And हो. he does say that I have toiled all night. और ये भी कहता है कि मैं पूरी रात यहाँ पर मेहनत कर चुका हूँ. But Peter says, लेकिन शिमोन कहता है, to be in step. वो उसी क्षण में कहता है, No, to be in that place with God, in His direction, in His order, और परमेश्वर के उस आज्ञा के अनुसार मुझे आगे बढ़ने के लिए, with the marching armies of the King of Kings. और वो राजाओं के राजा के आज्ञा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए. And he says, और वो कहता है, nevertheless, फिर भी आपके क्षण में, आपके कहने पर I will cast down the net. मैं जो है जाल को पानी में डालूंगा. We have passwords for everything. हमारे पास सभी चीज के पासवर्ड होते हैं. For our computer, हमारे कंप्यूटर्स के for our लिए, ATM, हमारे एटीएम्स for के लिए, paying bills or everything. और जो भी बिल्स के लिए है, सभी चीज के लिए. I believe और मैं विश्वास करता हूँ and I proclaim to you और मैं ये बात को कहना चाहता हूँ that at thy word कि परमेश्वर आपके कहने पर, is the password of the ages. और वो जो है सभी चीजों के जो है पासवर्ड It मैंने, is the password of all good men from the beginning until now. वो जो है इस सृष्टि के शुरुआत से लेके अब तक के सारी चीजों को जानने वाले एक व्यक्ति. Many Old Testament and New Testament saints have acted on these three words. और कई पुराने नियम के और नए नियम के जो है भक्त जनों ने जो है उसके आज्ञा का पालन किया है. And in them, और उसके बीच, they have got their marching orders और उनके द्वारा जो है उन्हें आगे बढ़ने की आज्ञा मिली from है. our commander, the God. वो हमारे मुख्य कमांडर के द्वारा. Just imagine and think. इस बात को सोचिए, Try to picturize the net. उस जो है जाल को जो है ध्यान देने की कोशिश कीजिए. A wave just encompassing that net. और वो जो वहाँ के तूफान जो है वो जाल के आसपास जो हो रहे हैं, And just the fishes are getting caught in it. और जो मच्छी जो है वो जाल के अंदर फंसे हुए थे. And it's the blessing of that obedience is so much और वो जो है आज्ञा पालन करने की जो आशीष को हम देखते that हैं, when he gets so many fishes in the net, जब शिमोन को इतने सारे मछलियां अपने जो है जाल में मिलती है, he has to call his friends to come and तो help उसको him. अपने दोस्तों को बुलाने की जो है एक जरूरत पड़ती है ताकि वो और मच्छी को पकड़ पाए. Do you believe it will happen to you? क्या आप विश्वास Amen. करते हैं कि वो आपके साथ Amen. हो सकता है? I'll just give you some examples so that you are boosted up, okay? कुछ उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहूंगा ताकि आप उत्साहित हो. Today at coffee, today while drinking your coffee, आज सवेरे जब आप कॉफी पी रहे थे, just go on repeating at thy word. सिर्फ ये बात को कहिए कि परमेश्वर आपके Okay. कहने पर. I'll give you the example of Noah. मैं नूह का जो है उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूँ. Imagine an ark being built on a dry land. आप ऐसा सोचिए कि एक जो है नाव बनाया जा रहा है एक सूखे भूमि पर. A mocking crowd laughing at him. वहां पर टट्टा करने वाले, मजाक करने वाले लोग उसके आसपास है. But Noah is not ashamed. लेकिन वहां पर नूह शर्मिंदा नहीं होता. He just lifts up his eyes towards heaven वो सिर्फ अपने नजरों को स्वर्ग की ओर देखता है and he says, और वो कहता है, I have built this great vessel, O Jehovah, मैंने इतनी बड़ी नाव को बनाई है यहोवा at thy word. तेरे कहने पर. Take Abraham, example of Abraham. इब्राहिम के बारे में सोचिए. He leaves this place of childhood. वो अपने बचपन की जो है जगह को छोड़कर निकलता है. He leaves his family, crosses the Euphrates. वो अपने परिवार को छोड़ता है, यूफ्रेटिस की नदी को पार करता है He enters Canaan और वो कनान में जाता and है. he roams as a stranger और वहां पर एक जो है ऐसे ही घूमते, एक लावारिस के समान वो घूमता है all his lives.
अपनी पूरी जिंदगी He lives in tents with Isaac and Jacob. वो अपने जो है इज़ाक और याकूब के साथ तंबुओं में रहता है। But if anyone will scoff him लेकिन अगर कोई उसके खिलाफ जाता है, for renouncing the comfort life, वो अपने जो है आराम की जिंदगी को ठुकराने के लिए जो अगर कोई उससे कहता है, again he will put his face to heaven वो फिर भी अपने चेहरे को स्वर्ग की तरफ दिखाकर कहेगा and he will smilingly answer to the Lord, और वो हंसकर परमेश्वर की तरफ देखकर कहेगा, it is at your word, O Lord. परमेश्वर ये तेरे कहने पर मैंने ये किया। Even when he is at the prime of his age, वो अपने बुढ़ापे के समय में होने के and as बावजूद he lifts his hand और वो जैसे अपने हाथों को ऊपर उठाता है to kill his son, अपने बेटे को मारने के लिए to stab him, और उसको जो है उसके बीच में चाकू मारने के लिए, so that somebody will charge him of murder, और ताकि कोई उसको जो है अपने बेटे को मारने के खिलाफ जो है अपराध उसके सामने रखे or thinks he is mad, और सोचेंगे कि ये थोड़ा सा पागल व्यक्ति है, once again he will say, और फिर से वो व्यक्ति ये कहेगा it is at your word, O कि Lord. ये तेरे कहने पर मैं कर रहा हूँ। At your word तो भी तेरे कहने पर shows willingness, वहां पर एक चीज दिखाती है, वो है उसके वो आज्ञा पालन करने की जो है मन को to the utmost. अपने पूरे हृदय के साथ उस आज्ञा का पालन करने का जो है एक नजरिया दिखाई Okay, देता है। Abraham was always willing, but in the sacrifice of his son, it went to the utmost. इब्राहिम हमेशा चाहता था कि वो आज्ञा का पालन करे, लेकिन जब वो अपने बेटे को मारने का चीज आता है, वहां पर वो अपने आज्ञाकारिता को जो है पूरे अगले लेवल पे ले चलता है। So sometimes our willingness will be tested to the utmost. कई बार हमारी चाहत को जो है पूरी तरह से जो है परीक्षित किया जा सकता है, Whether it is peripheral or whether it is central. या फिर चाहे हो सकता है वो छोटे रीति पे हो या फिर महान तौर पर हो। At your word means absolute obedience. तेरे कहने पर उसका मतलब ये है कि पूरी तरह से आज्ञा को पालन करना, At your word means trust and confidence. और तेरे कहने पर ये भी दर्शाता है ताकि वो पूरा परमेश्वर पर भरोसा करता है, And at your word means faithfulness. और तेरे कहने पर जो शब्द है वो ये भी दर्शाता है कि उसकी ईमानदारी परमेश्वर की तरफ कितनी है। So many other thousands of faithful ones in the Bible we can speak about. और हम ऐसे कई ईमानदार व्यक्तियों को जो है पूरे वचन में देखते हैं, And they will justify their acts और वो जो है अपने कर्मों को जो है पूरी तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश करते by हैं, saying, I did it at your word. और वो ये कहकर कहेंगे कि मैंने ये ऐसा किया क्योंकि वो तेरे कहने पर। We'll give one more example of Moses. एक और उदाहरण हम मूसा के बारे में देते हैं। We know that Moses lifted the rod before the Pharaoh. हम जानते हैं कि फरो के सामने मूसा अपने लकड़ी को जो है, छड़ी को जो है उठाता है। He doesn't lift it in vain, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं उठाता, because at Jehovah's word the plagues go on coming. लेकिन मूसा जो है परमेश्वर के जो है वचन के द्वारा वो अपने हाथ को उठाता है ताकि वहां के सारी पीड़ा प्लेग्स जो है आया जाया करते थे। Because we all know Isaiah 55:11, हम सब जानते हैं इज़याह उसका 55वां अध्याय, that the word of God परमेश्वर का वचन which goes out from his mouth जो उसके जो है जुबान से बाहर निकलती है, will never come back void, वो कभी वापस खाली नहीं लौटेगी, but it will accomplish the purpose for which the Lord has sent it. Amen. लेकिन वो सारे उद्देश्य को पूरा करेगा जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपने उस शब्दों को भेजा था। Just all of you must have seen the movie Ten Commandments. आपने सबने जो है 10 कमांडमेंट्स नाम की जो है मूवी को देखा होगा, And now you know Moses is in the front of the Red Sea और वहां पर मूसा जो है वो लाल समुद्र के आगे खड़ा हुआ है, with all the Israelites और वहां पे सारे इजरायली लोग and उसके the पीछे, army of Pharaoh at the back, और वहां पर पीछे जो है फरो की जो है पूरी सेना उसके पीछे है, and many of the people mocking and ridiculing him, और वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, saying that were there not graves in Egypt that you brought us to die here? और वो मूसा से कह रहे थे कि वहां पर क्या कब्रिस्तान नहीं था कि हम आप यहाँ पर लाल समुद्र के सामने हमें ले आए हो। Moses' answer is only one thing. वहां पर मूसा सिर्फ एक उत्तर को देता है, I did it at Jehovah's word. मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार है, And God justifies his word. Amen. और वहां पर परमेश्वर उसका साथ देते हैं। The Red Sea opens वहां पर लाल समुद्र खुल जाता है, and they dance and they sing to the Lord, for he has triumphed gloriously. और वहां पर वो नाच गाकर वहां से पार करते हैं क्योंकि वहां पर परमेश्वर काम करता है। Think of Joshua. योशुआ के बारे में सोचिए, Very odd, na? Just take the musicians and sing around. और वो सिर्फ अपने जो है एक दीवार के खिलाफ जो है सिर्फ अपने गाने को Okay. गाकर जो है वहां पर चल रहे हैं, And he says,
just give one blast of the trumpet. और उन्होंने कहा कि अपनी तुरी का एक फूंक जो है जोर से फूंकिए. One final Muhammad Ali punch. Huh? वो फाइनल पंच जो हमें देखता है, His reason is उसका कारण ये है because God has spoken to him क्योंकि परमेश्वर ने यहोशुआ से बात की है and he follows that word. और यहोशुआ उसका आज्ञा को पालन कर I'll रहा not है. go longer, but there is Samson, Japheth, and Barak, and so many other things. हम जो है शिमशोन और याफेत और बराक ऐसे कई लोगों के बारे में देखते हैं. But you know, we who are seated here लेकिन हम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं may say, "Oh, I'm Lijo, वो कहेंगे मैं तो लीजो हूँ, I'm Dr. John, मैं तो डॉक्टर जॉन हूँ, I forgot some names. Maybe Jayesh is there, and Rohan, whom I just met. You know, oh, they are great people. Don't talk about them, Pastor." आप लोग कहेंगे वो वचन में जो कहे लोग जो है वो बहुत महान लोग हैं, हमारे सामने उसके बाद में नहीं कहिए. No, my dear brethren. भाइयों, ऐसा नहीं है. If that is our thought, अगर वो हमारी सोच है, we are not only making fun of ourselves, हम सिर्फ अपने आप का मजाक नहीं उड़ा we रहे are हैं, not only deceiving ourselves, हम सिर्फ अपने आप को जो है डिसीव नहीं कर रहे but हैं, we are disbelieving God. Amen. लेकिन हम परमेश्वर की तरफ जो है अविश्वास को दिखा रहे हैं. His word is the same. और उनका वचन जो है आज भी सेम है. It could be just as small as casting a net. और वो छोटी सी छोटी बात हो सकती है कि पानी में जो है अपने जाल को डालना. Maybe you will not be called to build an ark because it's already done. आपको शायद एक नाव बनाने के लिए बुलावट नहीं हो सकती है क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है. Maybe you are not called to lift a rod or part the Red Sea because it is already done. हो सकता है कि आपके सामने ऐसा कोई लाल समुद्र नहीं है जहां पर आपको छड़ी को दिखानी है और वो समुद्र को दो भाग करना है. Maybe you will not be told to blow a trumpet because that is also already done. हो सकता है कि आपको कोई आज तुरी फूंकने के लिए भी नहीं कह रहा क्योंकि वो भी चीज हो चुकी है. But we have to wait for one trumpet. That is the second coming of the Lord. लेकिन एक तुरी की हम जो है रात देख रहे हैं जो जल्द से होने वाली है. But I want to stress, dear brethren. लेकिन I want to stress, dear brethren, मैं आपको जो है इस बात के लिए जो है बार बार दोहराना चाहूंगा that even the smallest and the simple act of faith, जो छोटी सी छोटी विश्वास के कदम को जो आप रखते हो, if you do it on the word of God, अगर वो आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करते हो, it will be great in His sight. Amen. वो परमेश्वर के नजर में जो है बहुत ही महान हो सकती है. Peter's net did the same glory. और पतरस का जो है जाल जो है वहां पर वही काम करता है. We will have good fellowship with God हमारे पास जो है परमेश्वर के साथ अच्छी संगति हो सकती है because at Thy word क्योंकि परमेश्वर के उस कहने पर you are having good fellowship with God. आप परमेश्वर के साथ अच्छी संगति को पेश करते हो. You know, we all have certain rules or ethics that we make in the house. और हमारे पास जो है हमारे घरों में जो है कई सारे नियम को जो है हम I बनाते think हैं. at Thy word लेकिन परमेश्वर के उस वचन में should be the rule of all Christians for every aspect of their life. Amen. जो भी नियम हमारे जीवन में हम बनाते हैं वो परमेश्वर के उस वचन के अनुसार होना बहुत जरूरी है. At Thy word. Please repeat this. At Thy word. आपके उस कहने आपके कहने से. आपके कहने से. And the rule should direct us in the church, और वो नियम हमें कलीसिया तक ले आनी in है, the world, दुनिया में ले जानी है, in our homes, हमारे घरों में ले आनी है, in our workplace, हमारे काम के जगहों पर in ले our आनी है, marketplace. हमारे जो है मार्केट It प्लेस should में होना, follow you everywhere. और वो परमेश्वर का That's वचन the आपके rule of साथ, each and every one of us. और वो नियम आपके लिए हमेशा है. The power of the church and the power of the individual to please God और कलीसिया के जो सामर्थ है वो कलीसिया की जो आज्ञाकारिता है will never be fully known by you वो आप हमेशा पूरी तरह से नहीं जान सकते हो till you do not go back to our text. जब तक आप इस परमेश्वर के वचन में जो हम पढ़े थे वहां तक नहीं जाते. At Thy word. परमेश्वर आपके कहने से, Nevertheless, at Thy word. लेकिन तेरे कहने से. It could be a simple thing. बहुत ही साधारण चीज हो सकता है. Don't wear this today. आप आज Don't wear this today. और ये नहीं पहनिए. Go and speak to that person. और वो व्यक्ति के साथ में जाकर बात कीजिए. Please go to church today. आप जो कलीसिया जाइए. Please do this prayer. इस प्रार्थना को कीजिए. Provide some help or money to somebody. किस व्यक्ति को जो है पैसे के साथ या किसी और प्रकार की मदद को दीजिए. You will just say, at Thy word. Amen. और आप कहेंगे कि सिर्फ परमेश्वर आपके कहने पर. This rule has many applications. और यहाँ पर ये नियम के जो है कई जगहों पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. And as I just said that in
normal, ordinary affairs of life, और अपने जीवन के जो है साधारण चीजों में, but it will matter for spiritual profit to you. और वो आपके जो है आत्मिक रीति में जो है आत्मिक यात्रा में आपकी मदद कर सकता है। And then to life's greatest business that we have, और जो है हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण जो है व्यापार को हम करें, to be fishers of men. ताकि हम जो है लोगों को पकड़ने वाले बने। So many times the Lord speaks to us. कई बार परमेश्वर हमसे बात करते हैं, Talk to this person. इस व्यक्ति से बात कीजिए, Witness to this person. इस व्यक्ति को परमेश्वर के बारे में Meet this बताइए, person. इस व्यक्ति से Tell मिलिए, him about me. उनको मेरे बारे में बताइए। Is this all not the word of God? क्या ये सब परमेश्वर के वचन नहीं है? Are you saying, नहीं, वो थोड़ा खड़ूस लगता है. आप कहते होंगे कि ये तो थोड़ा खड़ूस लगता है। नहीं, वो मेरा दोस्त छूट जाएगा. You would be saying, if I do this, I will lose that friendship. Good लीजो. But that is the word of God to you. लेकिन ये परमेश्वर का वचन है आपके लिए। Maybe you have spoken to that person 5 times. हो सकता है कि वो लड़ाई कर चुके हो कई बार उस व्यक्ति के साथ। Maybe he's also back answered you. हो सकता है कि उन्होंने कई बार आपके खिलाफ जो है आपको विपरीत उत्तर भी दिया हो। Maybe he told you, never talk to me this again. और कई बार वो व्यक्ति ने आपसे कहा होगा कि ये बात के बारे में तुम मेरे बारे में कभी ना कहिए। But the Lord nudges you. लेकिन परमेश्वर आपके फिर से ठुकराता है, At thy word. कहता है कि मेरे इस वचन में। You know, we must continue in prayer, constant prayer. हमेशा हमें जो है प्रार्थना में आगे बढ़ना जरूरी है। Because sometimes we pray for jobs, कई बार हम जो है अपने जॉब्स के लिए प्रार्थना करते हैं, sometimes we pray for a good house, कई बार अच्छे घर के लिए प्रार्थना a good करते हैं, office, अच्छे ऑफिस के लिए प्रार्थना करते a हैं, financial crisis, हमारे जो है संपत्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, and you lose hope. और आप अपने जो है आशा को खो देते हो। Please start using this verse. इस वचन को जो है दोहराना शुरू कीजिए। Lord, परमेश्वर, I've toiled all night. मैं पूरी रात मेहनत कर चुका हूँ, I've done so many things. मैंने बहुत सारी चीजों को किया, I've done too many things to influence somebody. मैंने जो है किसी व्यक्ति को आपके तरफ ले आने के लिए बहुत सारे कामों को किए, But there's nothing to show for it. लेकिन वहां पर कुछ दिखाने के लिए नहीं है। Maybe for a long time you're still in the night. हो सकता है कि आप कई समय तक जो है उस अंधकार में, उस रात के समय में हो। As Peter said, Lord, we had toiled all night. जैसे शिमोन ने कहा कि पूरी रात परमेश्वर हम मेहनत कर चुके हैं। But my dear brethren, लेकिन प्रिय भाइयों, the dawn is yet to come. वो सवेरा जल्द से आने वाला है, And Christ still murmurs into your ears. और वो मसीह जो है आपके कानों में आज भी बातों को कहता है। So let us say, हम इस बात को कहिए, nevertheless, at thy word, I will put the nets down. आपके जो है कहने पर जो है मैं अपनी जाल को डालूंगा। And let us not grow weary of doing this. और हम ऐसा करने से कभी थक ना जाए। Galatians 6, 7, 8 and 9. गलातियों का पुस्तक उसका 6 अध्याय इस प्रकार कहता है। Just keep this text in your mind. सिर्फ ये वचन को अपने मन में रखिए। Psalms 127:1 says, except the Lord build the house, they labor in vain. वचन संहिता 127 इस प्रकार कहता है कि अगर परमेश्वर घर नहीं बनाता तो वो बनाने वाला जो है व्यर्थ में काम करता It है। is the truth we all know. और ये सच्चाई हम जानते हैं, But the Lord will never forsake his people. लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं ठुकराएगा। Line up your, gird up the lines of your mind. जो है अपने दिमाग को जो है हमेशा तैयार करो, Be sober, हमेशा नम्र रहो, be steadfast, हमेशा जो है जल्दबाजी में रहो, and do not cast away your confidence. Amen. और कभी जो है अपनी जो है वो कॉन्फिडेंस को ना खो, Because who has given you this confidence? क्योंकि ये कॉन्फिडेंस, ये हिम्मत किसने आपको दिया It है? is the death of Jesus that has given you this और confidence. ये मसीह की जो वो क्रूस पर जो बलिदान है वो हमें ये दे चुकी है। Even as he speaks to you, और जैसे वो आज आपसे बात करते he हैं, gives you access. वो आपको जो है वहां पर प्रवेश करने का जो है अधिकार He देता gives है, you understanding. वो आपको समझ देता है, He gives you confidence. वो आपको जो है हिम्मत देते हैं। Do not wait till the battleground changes. और जब तक आपकी जो है वो लड़ाई का स्थल बदल नहीं जाती तब तक आप हार ना मानो। Open your doors. अपने दरवाजों को खोलो, Display your goods. अपने जो है अपने काम, अच्छे कामों को The पेश करो। goods are your gift of grace that you have received. Amen. जो कृपा परमेश्वर ने आपको दी है उसको जो है प्रकाशित करना शुरू करो। And once again declare and proclaim, nevertheless, और ये at your word, Lord. और ये हुक्म कर कर कहो कि परमेश्वर आपके वचन में मैं ये कहता हूँ। Maybe some of us out of work हो सकता है कि हम में से कई लोग काम से जो है or बाहर in हैं, need,
या फिर कोई और जरूरत में है, You need to provide bread and clothing for your family. आपको जो है अपने घरों में जो है भोजन और कपड़ों को पहुंचाना है। But even after toiling much, लेकिन बहुत सी परिश्रम को करने के बावजूद even after the presence of blisters in your body, और वहां पर अपने शरीर में आप जो है नुकसान पहुंचाने के बावजूद don't say, I will not try anymore. ये बात को नहीं कहिए कि मैं और प्रयत्न नहीं करने वाला। Just apply this text to your painful trial. और ये शब्द जो यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं इसको अपने जीवन में प्रायोगिक कीजिए। This is a very strong statement I'm going to make. ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है जो मैं आपके साथ कहने Let वाला the people see हूं। जो लोग देखने पाए that a Christian cannot be driven to despair. एक मसीह जो है कभी निराशित के तरफ नहीं जाने Even देगा। if the yoke is getting heavy, हो सकता है कि उसका बोझ और कठिन होता रहे। God has a way of strengthening the back of His children. परमेश्वर का जो है हमेशा एक रास्ता होता है कि वो अपने बच्चों के पीठ को जो है तैयार कर सके। And it is in our daily life, वो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में, which is the true place to prove our godliness और वही एक जगह है जहां पर हम हमारी धार्मिकता को जो है पेश कर सकते हैं and to bring glory to God. और परमेश्वर को जो है महिमा दे सकते हैं। Maybe you want to acquire some skill, हो सकता है कि आपको कुछ स्किल को या फिर कुछ गुण को some vocation, कुछ चीजों को सीखना हो, some knowledge. कुछ ज्ञान को सीखना पाना Do हो। not cease your efforts. अपने जो है प्रयत्नों को कभी छोटा ना समझो। Maybe you want to train your children in the way that the Lord has told us. हो सकता है कि आप चाहते हो कि आप अपने बच्चों को जो है परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के भय में आगे बढ़ाना चाहते हो, But you have a son who is a bit wild and proud. लेकिन आपके पास एक बेटा है जो बहुत ही घमंडी है और जो है खिलाफ जाता है And not yet yielded to obedience. और वो अभी तक जो है आज्ञाकारी की तरफ नहीं पहुंचा है। Maybe you have a daughter हो सकता है आपके पास एक बेटी हो who is still not submissive. जो आज भी जो है नम्र नहीं है, जो अपने आप को समर्पित नहीं करना चाहती। Maybe you are teaching in your Sunday schools हो सकता है कि आप अपने संडे स्कूल में सिखा रहे हो and you want to mold minds, और आप चाहते हो कि वहां पर परमेश्वर के लिए जो है वहां पे बच्चों को तैयार करो, but yet no results. लेकिन अब तक आप कुछ उत्तर को नहीं देख सकते। Call back this verse. लेकिन परमेश्वर के इस वचन पे जो है टिके रहो। I've toiled. मैं पूरी रात, I did use night. मैं I have toiled मैं बहुत प्रयत्न कर चुका हूँ, again and again, बार बार, day after day, दिन बार दिन, moment by moment, क्षण पर क्षण, year by year, सालों में, but लेकिन still, फिर भी फिर भी I will keep your word. I will do it at your मैं word. आपके वचन Amen. को पालन करूंगा। Okay. For whatever you do it heartily as unto the Lord. जो भी आप Okay. करते हो वो परमेश्वर के लिए करें। So how do you fight the battles of your life? और आप अपनी जिंदगी की लड़ाई को किस प्रकार लड़ते हो? Like cowards or Christians? Like cowards or Christians? क्या बुज़दिली से करेंगे या मसीह के जैसे आप बढ़ेंगे? आपका जंग जो है इस दुनिया में आप बुज़दिली से करेंगे या मसीह की तरह करेंगे? Okay? So because we have to fight the spiritual wickedness. आपको जो Okay. है इस लड़ाई को जो है दुष्ट के साथ लड़ाई को करना है So be sound and practical और जो है हमेशा अपने जीवन में प्रैक्टिकल हुई, by using the great principle. जो सीख परमेश्वर से हम सीखते हैं। You know, this verse, इस वचन को हम देखेंगे, it came out from a common man वो जो है like Peter. Because many of us say, oh, I am very common. वो जो है एक शिमोन के समान एक साधारण व्यक्ति का उपयोग करते हैं And it involved his implements. और वो जो है वहां पर उसके जो कर्म थे उसके तरफ जो है दर्शाते हैं। That is his boat and his net. वो जो है उसका नाव और उसका जो है जाल। So today, whoever you are, आज जो भी आप हो, teacher, हो सकता है आप सिखाने वाले, accountant, IT, अकाउंटेंट, wherever you are, जहां पर भी आप काम करते हो, please use your implements. अपने जो भी जो है गुण को जो है उपयोगित करो In the name of God परमेश्वर के नाम के and लिए at his word, और परमेश्वर के वचन do के, not get despaired, अपने आप को जो है but नीचा, go forward लेकिन आगे बढ़ो and put down your net. और अपने जाल को पानी में डालो। So can I let down the net to strengthen an arm or cheer a heart? क्या मैं ये जाल को डाल सकता हूँ ताकि मैं एक हाथ को जो है मजबूत कर सकूं या एक दिल को उठा सकूं? It could just be a word in season for the weary and the lost. हो सकता है कि इस समय के लिए आपको जो एक वचन की जरूरत थी वो वचन हो सकता है। So let us all stand, please, हम सब खड़े हो जाएंगे, and just close our eyes. आंखों को बंद करेंगे। Please stand. Close your eyes, please.
Let the Holy Spirit speak to you. Ora rabbana kora shara shakara parabakora. I think you are waiting for the stirring of the pool. मुझे लगता है कि आप जो है उस पानी को फिराने के लिए जो है उस दूध की जो है रात को देख रहे हो। Let me tell you, dear brethren, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, there is no pool to be stirred. ऐसा कोई एक पानी नहीं है, ऐसा कोई तालाब नहीं है जिसको जो है फिराना है। No angel is going to come to stir it. वहां पर कोई स्वर्गदूत नहीं आने वाला उसको हिलाने है। When Jesus told that man at the pool जब यीशु मसीह उस व्यक्ति से जो उस तालाब के पास बैठे थे to take up his mat and walk, अपने जो है बिछाने को उठाकर चलने के लिए, that man walked. वो व्यक्ति वहां पर चल पड़ता है And at that moment, और उसी क्षण में Jesus shut down the pool. और यीशु मसीह उस जो है तालाब को बंद कर देते हैं। So if you believe, अगर आप विश्वास करते हो, then you have no business to wait. आपको जो है कोई भी व्यापार की जो है रात देखने की जरूरत नहीं है। Let down your net once more आप अपने जाल को जो है एक और बार डालिए and say, Lord, और ये कहिए कि परमेश्वर, I believe. मैं विश्वास करता हूँ, Help me in my unbelief. मेरी जो है अविश्वास में मेरी मदद कीजिए। Be in persistent prayer as we have already told you. जैसे मैंने आपसे कहा कि अपने प्रार्थना में हमेशा व्यस्त रहिए। You're praying for the conversion of somebody in your family. आप जो है अपने परिवार में किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि उनका मन फिराव हो। Again, you may say, I've tried and I've tried, और फिर से आप कह सकते हैं कि मैंने बहुत बार परिश्रम को की है, but that person is not yet converted. लेकिन वो व्यक्ति आज भी जो है अपने मन को नहीं फिरा चुका है। Just say, at thy word, O Lord. लेकिन फिर से ये बात को दोहराइए कि परमेश्वर आपके कहने पर You are searching the scriptures आप जो है अपने वचन को खोज रहे हो to find a promise. और जो है परमेश्वर के एक वायदे को जो है पकड़ कर रुकने के लिए, Not only a promise, और सिर्फ एक वायदे को नहीं, but as Pastor said today, लेकिन जैसे पासवान जी ने आज कहा, that you are finding your miracle. Amen. आप जो है अपने चमत्कार का खोज कर रहे हो। It could happen today. वो हो सकता है कि आज आपके साथ हो, It could happen at any given time. हो सकता है किसी और समय में आपके साथ हो। Just hold on to it. सिर्फ अपने जो है उस वायदे को पकड़े रहे। There are many promises around that boat. और वो वचन के आसपास जो है कई सारे वायदों को हम देख सकते हैं, The scripture is full of them. और ये वचन पूरे वायदों से भरा हुआ है। But sadly, my dear brethren, लेकिन दुख की बात ये है, you have not yet caught it. आप अब तक उस वायदे को नहीं पकड़े हो। Just say, सिर्फ ये बात को कहिए, I will search the scriptures again. मैं ये वचन को फिर से खोजूंगा, At thy word, आपके कहने पर I will get my promise. मैं अपने वायदे को जरूर पाऊंगा। And even the temper of yours, और जो क्रोध आपका है, the anger that we have, जो गुस्सा आपको आता है, the laziness that we have जो sometimes, आलसपन आपके सामने है, it can all be conquered वो सब को जो है आप उसको हरा सकते हो at thy word. परमेश्वर के उस वचन में। And lastly, maybe you are seeking greater holiness and righteousness. और अंत में हो सकता है कि आप और अधिक पवित्रता की तरफ जो है पसंद कर But रहे it's been quite a while. हो, लेकिन बहुत समय बीत चुका है Getting rid of that sin problem. और उस पाप के से जो है मुक्त पाने के लिए And you want to conquer that persistent sin. और वो पाप को जो है कई बार आप हराने की कोशिश कर चुके हो। You have lost your zeal. आपने जो है अपने उत्सुकता को जो है खो दिया है, And you have not yet gained your heart's desire. और आज भी आप अपने दिल की पसंद को जो है पहुंच नहीं पाए हो। Just remember this verse. इस वचन को याद कीजिए। So now, even as we sing this hymn, और जैसे गीत को हम गाते हैं, let us claim this verse in our lives. ये वचन को Just हमारे put दिलों on the में। hymn, please. Victor's crown. I think this is a bit new to you all, but it's very easy. You can all join in. You have won the victor's crown. You have triumphed over sin and death. Your name is lifted high and reigns throughout the earth. Every demon spirit in hell always trembles when your name is heard. And we, your church and force,
that victory in the world. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. Nothing compares with the power of that name. You are Jesus, you are Lord, you are God. Church, you have triumphed. You are more than a conqueror, and you can do greater things. Please let us sing again. You have won the victor's crown. You have triumphed over sin and death. Your name is lifted high and reign throughout the earth. Every demon spirit in hell always tremble when your name is heard. And we, your church, enforce the victory in your town. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. Nothing compares with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, you are God. You are Jesus, you are Lord, you are God. You are Jesus, you are Lord, you are God. For the last time, without the music. You are Jesus, you are Lord.